President Emmanuel Macron is all set to meet Prime Minister Modi in Mumbai, and we are going to address and see a lot of diplomatic addresses and AI summits ahead of this AI summit, ma'am, in New Delhi. India and France have a long-standing relationship, and it has only deepened over time because of shared democratic values as well as shared rules-based order commitment. And considering ever since 2014, the relationship has deepened with regards to purchase of defense equipments. We're hoping that this relationship will only move forward and from strength to strength. And he's visiting on the sidelines of the AI summit, and he is going to be equally involved in that and will be addressing that as well. So we welcome him to India, and we hope for a better relationship and strengthening of relationship in times to come. Prime Minister-elect Tariq Rahman is all set to take oath as the Prime Minister of Bangladesh. How do you see to it, ma'am? And our representative from New Delhi, Om Birla ji, is also participating over the same, ma'am. क्या ऐसा भी हो सकता था कि Prime Minister Narendra Modi may have taken the charge and gone to Dhaka, ma'am? As far as Prime Minister Modi is concerned, there was also a concern of the Pakistani Prime Minister being part of it. And considering at a time when our relationship is at an all-time low, to build confidence, it's important that we engage with Bangladesh. It has a new Prime Minister, and this is the first male Prime Minister in several decades that Bangladesh has got. So understanding the seriousness of how India-Bangladesh relationship has only gone downhill. Pakistan has had a long, strong influence on Bangladesh. It is important that we can start to engage with Bangladesh and ensure that the relationship that we shared comes back on the same footing, and we work jointly towards better outcomes and economic growth story and prosperity for both nations. Outgoing interim advisor Mohammad Yunus has once again rigged up India's seven sister remark, ma'am. Before his farewell speech a day back, ma'am, he was addressing the people of Dhaka, the people of Bangladesh. He has said that Nepal, Bhutan and the seven sisters are playing a crucial role. He can continue to say what he wants. He has been the most divisive figure of Bangladesh, influenced heavily by Pakistan and aided and abetted targeted killing against Hindu minorities. He's also allowed his people of Bangladesh to be radicalized under the influence of Pakistan. So I would only say it is good riddance, and probably such provocative statements coming from him would get the deserving response that MEA will give to him. Considering this was his farewell speech, he could have ended it on a positive note, but it shows his bitterness towards India and what his ideas about India-Bangladesh relationship is. I would only say that in the times to come, the Prime Minister would think wisely and would understand the importance and significance of this relationship. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has called refusal to sing Vande Mataram as treason, ma'am. It's only a political gimmick for Yogi Adityanath ji. Can you ask him to please first sing the 6 stanzas, the complete Vande Mataram, before he decides who is anti-national, who is unpatriotic, who is carrying out acts of treason. First, we must hear him sing and take the lead in sharing what his knowledge about Vande Mataram is. There's nothing but a divisive idea of trying to politicize a national song for personal benefits and political benefits. आदित्यनाथ का बयान आया है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर लेस आउट कर रहे थे. उन्होंने कहा कि आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये देशद्रोह से कम नहीं है. जब पूरा उत्तर प्रदेश उन पे लैश आउट कर रहा है, वो ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये ट्राइड एंड टेस्टेड टूल किट है भारतीय जनता पार्टी का, कि जैसे ही कोई तीखे सवाल इनसे पूछने लगे, वो ध्यान भटका देंगे कि चलिए अपने राष्ट्रगान को लेकर बात करते हैं. मैं उनसे बस कहूंगी, योगी आदित्यनाथ जी, पहले सबके सामने 6 स्टैंजा का जो पूरा वंदे मातरम जो होम मिनिस्टर ने कहा है 3.5 मिनट का गाना है, वो गाना गाकर सुना दें, सभी को सुना दें, टेक द लीड. फिर सर्टिफिकेट दें कि कौन ट्रीसन कर रहा है, कौन एक्ट ऑफ ट्रीसन कर रहा है, कौन पेट्रियट है, कौन. ये इनकी ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है टू डिस्ट्रैक्ट पीपल, डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑफ द डे. उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा माहौल बना हुआ है जो योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ है. उनसे बहुत तीखे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इसलिए वो जानते हैं उनका राजनीतिक कहीं ना कहीं पराभव हो सकता है, इसलिए वो ऐसे मुद्दे ला रहे हैं जो और जनता का ध्यान ही नहीं भटकाए. हमारा जो नेशनल सॉन्ग है उसको राजनीति के बीच में ले आया.
प्राइम मिनिस्टर इलेक्टी ऑफ बांग्लादेश तारिक रहमान साहब आज ओथ ले रहे हैं मैम। हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब आज मौजूद रहेंगे। आप कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? हमारे नई दिल्ली और बांग्लादेश के रिश्तों में किस तरीके से तब्दीली आने वाली है? सबसे पहले तो मैं उनको बधाई दूंगी कि बहुत कम होता है कि पहली बार, मैं ये कहूँ कि पहली बार काफ़ी दशकों बाद एक पुरुष प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के। ये बांग्लादेश ने दिखाया था कि दशकों तक महिला प्रधानमंत्रियों ने बांग्लादेश को संभाला था। ये पहले पुरुष होंगे जो दशकों बाद संभाल रहे हैं, वो बागडोर संभाल रहे हैं। तो पहले तो मैं उनको इस बात की बधाई देना चाहूँगी। दूसरी, इसी अपेक्षा से, क्योंकि प्रजातंत्र के माध्यम से चुनकर आए हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो जानते हैं कि डेमोक्रेसी कितनी इम्पोर्टेंट है वहाँ के लिए, और इंडिया का जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रहा है उसमें वो उसकी समझ उनको है। तो वो शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, शेयर्ड गोल्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। तो वो आगे जो रफ्तार कहीं ना कहीं रुक गई थी उसको फिर से पटरी पर लाएंगे। और हमने एक ऐसा माहौल भी देखा था जहां पाकिस्तान बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस कर रहा था, पाकिस्तान की वजह से रेडिकलाइजेशन हो रहा था। यूनुस के एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उनके अंतर्गत माइनॉरिटी हिंदूज के ऊपर टारगेटिंग की गई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उसको भी उनको भी न्याय देंगे और उनको एक सुरक्षित माहौल देंगे, यही उनसे अपेक्षा है। उम्मीद है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्राध्यक्ष पर वहां पर आमंत्रित थे, हालांकि वो एआई समिट होस्ट कर रहे हैं, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए अगर हम ढाका और नई दिल्ली के रिश्तों को मजबूत करने? नहीं, मजबूत तो हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर है, मजबूत तो हमारे रिश्ते रहे हैं। ये सबकी इतिहास की समझ इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर में भी है। तो और क्योंकि एआई समिट यहाँ पे जारी है, वी हैव अ विजिटिंग डिग्नेटरी, तो रिप्रेजेंटेशन वाज इम्पोर्टेंट। एंड बस क्योंकि ये रिश्ते मधुर नहीं रहे, टारगेटेड किलिंग्स हुई, और उसको पटरी पे लाने की जो जिम्मेदारी है, अब ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी बांग्लादेश की तरफ होगी, और हम पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हैं। एक अंतिम सवाल मैम, आउटगोइंग इंटरिम एडवाइजर मोहम्मद यूनुस लगातार सेवन सिस्टर्स पर तीखे टिप्पणियां करते रहते हैं, भारत की संप्रभुता को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। फिर उन्होंने यही राग अलापा है अपने विदाई भाषण के दौरान। वो पाकिस्तान की कठपुतली थे जब केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे। पाकिस्तान की बातों को वो माइक पे अनाउंस कर रहे थे और उसी एजेंडा के अनुसार वो चल रहे थे। उनके अंतर्गत जब वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अंतर्गत हिंदुओं पे जिस तरीके से हमले हुए, हिंदुओं को टारगेट कर कर उनकी लिंचिंग हुई, उनके मर्डर्स हुए, उनके साथ इस तरीके की घटनाएं सामने आई जो हमें सबको झकझोर देती थी, पर इनको किसी तरीके की शर्म नहीं आई। अब वो जाकर उन्होंने पहले भी इस बारे में कहा है सेवन सिस्टर्स को लेकर, उनको कह दूं और बार बार कहूंगी, एक तो पहले तो गुड रिडेंस है कि वहाँ से अब बांग्लादेश के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर से वो हट गए हैं। दूसरी बात, सेवन सिस्टर्स हो, हमारे देश का चप्पा चप्पा हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, अक्साई चिन्ह हो, वो हमारे देश का अभिन्न अंग है, और ये कितनी भी बातें करते रहे, हम उनको पुरजोर तरीके से उनकी जगह दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।